Guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. So in the last video lecture we discussed the theorem that contraction of mu over f, right? And we are studied our first section of GMIT, which is a math of MSc semester 4th. Those who don't know, so this is for them. So in this video lecture we are going to discuss our next theorem, which is statement है if mu is a measure on a ring R and E and F belongs to R such that mu E del F is equal to 0, then we have to prove that mu of E is equal to mu of F is equal to mu of E union F is equal to mu of E intersection F. So हमें given सिर्फ ये है and we have to prove this equality. So let's get started our proof. So mu be a measure on a ring R, right? E and F we take the two sets from R, which is domain of our measure, such that mu of E del F is equal to 0, right? So required to prove यहाँ पे लिखा है. Now given क्या है? Since we have mu of E del F is equal to 0, that means what is the डेफिनेशन ऑफ डेल और सिमेट्रिक डिफरेंस. सो इसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस. एंड ये किसके इक्वल होता है? ई माइनस एफ यूनियन एफ माइनस ई. सो ये याद रखना. तो इसको ओपन कर दिया, विच इज़ इक्वल टू mu of E minus F union F minus E is equal to 0. Now mu is a measure, so we apply the property of additive. So जब हम property additive की apply करेंगे, so what we get? Mu of E minus minus F union F minus E is equal to mu of E minus F plus mu of F minus E. So we have this. Now see, mu is positive, and when the sum of two positive terms is equal to 0, what is mean? It means that both the terms are 0, right? क्योंकि दो पॉजिटिव टर्म्स का सम तो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है ना. अगर किन्हीं दो टर्म्स का सम 0 है, इट मीन्स वन ऑफ देम इज मस्ट बी नेगेटिव, बट हेयर mu is always positive, so both terms are positive. So if the sum of two terms are positive, that means they both the terms are equal to 0, right? So यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? mu of E minus F and mu of F minus E both are equal to 0. Now E can be written as E minus F union E intersection F. So E हम ऐसे लिख सकते हैं. Now we see this by Venn diagram. So हमने दो सेट लिए हैं E and F. Okay. So हमने क्या लिखना है? We only want E, this whole E. So we can write this E as E में से अगर हम इस पोर्शन को हटा दें, राइट, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट F माइनस C, वट वी गेट? वी ओनली हैव दिस, है ना. ये पोर्शन नहीं आएगा, बट E के अंदर तो ये पोर्शन भी है और हमें E पूरा चाहिए. तो हम क्या करेंगे? ये पार्ट, दिस पार्ट ऑल्सो कैन बी रिटन एज E इंटरसेक्शन F, क्योंकि दोनों की इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये. सो इफ़ वी एड दिस पार्ट इन this part, so we get whole ही. तो E में हम यूनियन कर देते हैं किस पार्ट का? E इंटरसेक्शन F का. ओके. सो वही लिखा है, अगर हम E में से F को सब्ट्रैक्ट कर दे, देन उसका यूनियन करते F के कॉमन वाले पार्ट के साथ, राइट. सो लिख दिया. नाउ वी अप्लाई म्यू. सो हमने म्यू अप्लाई किया. अगेन जब हम म्यू अप्लाई करेंगे, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ additive we get
एडिशन, राइट। तो म्यू ऑफ ई किसके इक्वल आ गया, म्यू ऑफ ई माइनस एफ प्लस म्यू ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। नाउ दिस इज इक्वल टू 0 फ्रॉम दिस यू कैन सी, ठीक है, ये टर्म हमारी 0 हो गई, तो हमारे पास क्या रह गया, म्यू ऑफ ई इज इक्वल टू म्यू ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। सो इक्वेशन 1 क्लियर है। नाउ सिमिलरली एफ वी कैन रिटर्न एज लाइक एज वी राइट ई। सो जैसे हमने ई लिखा वैसे ही हम एफ भी लिख सकते हैं। देन वी अप्लाई म्यू, देन वी अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ मेजर एडिटिव। सो ये यूनियन किस में चेंज हो गया, एडिशन में, राइट। नाउ फ्रॉम अगेन दिस इज इक्वल टू 0 फ्रॉम आवर दिस इक्वेशन, so we left with mu of f is equal to mu of f intersection e. so हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई 1 and 2 in which we get the value of mu of e and mu of f, and in the right side we have same part that is mu of e intersection f. but now again first we see what we have to prove, है ना। तो वी हैव टू प्रूव दैट म्यू ऑफ ई इज इक्वल टू म्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू म्यू ऑफ ई यूनियन एफ एंड ई इंटरसेक्शन एफ। सो फ्रॉम वी 1 and 2 वी कैन से दैट म्यू ऑफ ई 1 and 2 से हम क्या कह सकते हैं, एक मिनट। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट म्यू ऑफ ई इज इक्वल टू दिस and these are same, so this is equal to this, so we can say that mu of e is equal to mu of e intersection f is equal to mu of f. so एक ही टर्म है जो हमने इक्वल दिखानी है इन सब के, डेट इज यूनियन वाली टर्म। सो वो देखते हैं। नाउ e यूनियन f कैन बी रिटन एज e del f यूनियन e इंटरसेक्शन f। सो नाउ ये कैसे लिखा है इसको भी हम देखते हैं फ्रॉम द वेन डायग्राम। ओके, तो हमने दो सेट लिए ई एंड एफ, ठीक है। फर्स्ट वी राइट व्हाट इज ई डेल एफ, ई डेल एफ इज इक्वल टू ई माइनस एफ यूनियन एफ माइनस ई। सो वेन डायग्राम में देखते हैं ई डेल एफ कौन से वाला पोर्शन होगा, ई माइनस एफ मीन्स ई में से एफ वाला पोर्शन हटा दीजिए, ये वाला। एफ माइनस ई का मतलब क्या है, एफ में से ई वाला पोर्शन हटाना है। सो ई डेल एफ वाला पोर्शन हमें कौन सा मिल गया, एक ये और एक ये पार्ट नहीं आता ई डेल एफ में। एंड ई यूनियन एफ में कौन सा पार्ट आएगा, अगर हम ई यूनियन एफ करते हैं तो हमारे पास ये पूरा पार्ट आता है, राइट, ये भी आता है। तो अगर हमने ई यूनियन एफ को लिखना है विद द हेल्प ऑफ ई डेल एफ, सो वी हैव टू ऐड दिस पार्ट ऑल्सो, एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ। सो यहाँ से हमारा ई यूनियन एफ इज इक्वल टू ई डेल एफ यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ आ गया। म्यू को अप्लाई किया, अगेन मेजर की प्रॉपर्टी से एडिशन में आ गया, एंड वी नो दैट दिस इज इक्वल टू 0 क्योंकि हमें ये गिवन है। सो यहाँ से हमारे पास ई यूनियन एफ किसके इक्वल आ गया, ई इंटरसेक्शन एफ। सो फ्रॉम 1, 2 and 3 वी कैन से दैट ई mu of e is equal to mu of f is equal to mu of e union f is equal to mu of e intersection f. So hence proved. Okay.